Good morning, all of you. Hope you are fine at home. So, let's start. Let's start with our classes. Okay. Here are some keywords that I'm going to explain you. As per government rules, government has given us a guideline that we can continue our studies further, like online classes, and for senior classes they can go to the school for their doubt classes. If they have any doubt, they can go school for clearing their doubt. So government has given us guidelines so we can start our studies further and regularly. Courses, you have a 60% of a course, आपको 40% कोर्स गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है. सो आउट ऑफ 100% जितना भी आपका होता था उसमें से जो भी मेन पार्ट होगा वी हैव टू कंटिन्यू विद द डेट 60% पार्ट. स्कूलिंग, सो हमारे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे. वी विल कंडक्ट योर क्लासेस 5 days. हम आपका क्लासेस 5 days लेंगे एंड 1 day in a week we will make a doubt class for you. We'll decide a day जब भी आपको doubt होगा you can come to school 1 day in a week and can clear your doubt. So let's begin. We are going to start with our English grammar. This is your book for its standard English grammar. So let's start with first chapter, that is determiners. You can open your books, so it will be not problem to see. If you are not able to see the portion of book, then you can open your book जो भी आपके हैं. So let's start. What are determiners? Determiners होते क्या हैं? Determiners are those words which come before noun and show how they are used. The use of noun is necessary after a determiner sometimes. A qualified word may also come among determiners and noun words, a boy, a good boy. See, determiners basically ऐसे words होते हैं जो कि noun के पहले use होते हैं और वो noun का use बता रहे होते हैं. नाउन के पहले यूज होते हैं एंड हमें नाउन का यूज बता रहे हैं कि आपने जो सेंटेंस में नाउन यूज किया है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है. सपोज अ फ्यू वाटर, थोड़ा पानी. पानी हमारा यहाँ पे नाउन हो गया है और थोड़ा फ्यू, सो अ फ्यू वाटर. अ बेड, ये एक बेड है तो अ बेड हो जाएगा. सो बेसिकली हमें बताया जाता है डिटर्मिनर्स के थ्रू कि ये कितना यूज हो रहा है और किस चीज का यूज हो रहा है. तो आप अगर ये दो वर्ड्स भी याद रख लेंगे, किसका और कितना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ नाउन का इतना पार्ट और नाउन इसलिए यूज आ रहा है. ओके, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. क्या क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द. डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज. Possessive my, our, your, his, her, etc. Quantifiers are few, a little, much, many, a lot, etc. Number 1, 10, some, any, many, few, etc. Distributive all, both, half, either, neither, each, every, only, etc. So let's continue with the first determiners, that is article. A and N and the, तीन होते हैं a and the, are called articles in English language. These are divided into two categories. ये further two categories में divided है, that is indefinite articles. A और N, A और N हमारे indefinite होते हैं और जो the होता है वो हमारा definite article होता है. अब इनके uses देखते हैं. Let's see the uses of A and N, यानी कि indefinite articles. A and N are called indefinite articles. The use of A and N is basically related with the sound of pronunciation of a word. A is used before words which begins with consonant sound, no matter whether the first word is vowel or a consonant. Example, a man, a boy, a university, a aeroplane, a pen. ए और एन जो होते हैं बेसिकली जो हमारे यूज होते हैं, ए जो हम यूज करते हैं उसके जो वर्ड, सपोज वी आर यूजिंग विद बॉय और अ मैन, उसका जो प्रोनाउंसिएशन का साउंड होगा आपको कॉन्सोनेंट आना चाहिए. चाहे रिटर्न में वो वोवल्स हो या कॉन्सोनेंट, डजंट मैटर.
It should be consonant in pronunciation. Men, a man, a boy, a university, a ribbon, a pen, etc. N is used before word which begins with a vowel sound. जो N यूज होता है वो प्रोनाउंसिएशन में वोवल साउंड आना चाहिए. इन रिटर्न वो कुछ भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट और अ वोवल. अगेन इट डजंट मैटर. सो एप्पल. सी वोवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू. एप्पल यानी ए आ रहा है. अभी आप रिटर्न में ए होता नहीं होता हमें फर्क नहीं पड़ता, बट उसका प्रोनाउंसिएशन एप्पल आ रहा है. तो एन एप्पल, एन आर, एन एम एन एग एटसेट्रा. ओके, लेट्स मूव फर्दर. हमारा नेक्स्ट है यूज ऑफ ए एन. यूज ऑफ एन का देखते हैं हम किस किस जगह पे ये यूज होता है. बिफोर द काउंटेबल एंड अ सिंगुलर नाउन विच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. ये कहाँ पे सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है जो कि काउंटेबल भी है. आई हैव अ बुक. मेरे पास बुक है, नाउन हो गया है, ये सिंगुलर है. ए बुक हो गया यानी कि एक ही बुक है, तो इट इज सिंगुलर. सेकेंड, before such singular noun complements which signify a business or a profession. एक ऐसे सिंगुलर वर्ड्स जिनका बिजनेस या प्रोफेशन के बारे में हम बता रहे हैं जो कि सिंगुलर हो. शी इज अ नर्स, वो एक नर्स है, सिंगुलर है, और उनका प्रोफेशन हम बता रहे हैं. ही इज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है. ओके, इंजीनियर क्यों आया? अगेन वोवल साउंड आ रहा है. नेक्स्ट, बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ अ प्राइस, स्पीड, रिपीटेशन. जब हम किसी प्राइस को बता रहे हैं, किसी चीज का रिपीटेशन या स्पीड बता रहे हैं, तो उसमें एक्सप्रेशन के पहले आता है 2 रुपीज अ किलो. 2 रुपए का 1 किलो. तो ये हमें प्राइस बता रहा है कि 1 किलो आएगा वो 2 रुपीज का आएगा. 6 टाइम अ डे, रिपीटेशन हो रहा है दिन में 6 बार. बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के पीछे हाफ अ डजन, एक डजन है. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है अ डजन, अ लॉट, a lot of, बहुत सारा. a great deal of, a great many, a quarter, etc. ये सारे हमारे एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हैं जिनके पहले हम यूज करें. बिफोर सिंगुलर काउंटेबल इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि सिंगुलर है एंड काउंटेबल है और एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ है. व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, इसलिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर रहे हैं कि कितना सुंदर फ्लावर है. वो सिंगुलर है, अगेन हम एक फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ. उसके पहले अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के पहले हम यूज कर रहे हैं ए. बिफोर एब्रिवेटिव फॉर्म ऑफ अ डिग्री एंड पोस्ट. कोई भी पोस्ट या डिग्री हो गई, उनका एब्रिवेशन फॉर्म जो होता है उनके लिए यूज होता है. अभी एब्रिवेशन क्या होते हैं? जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे एम कॉम, मास्टर्स इन कॉमर्स. MSc, मास्टर्स इन साइंस, लेकिन हम इन्हें शॉर्ट में लिखते हैं M.SE, M.com. So these are abbreviation form. If a word begins with a vowel sound, we will use N, or if a word begin with a consonant sound, we will use A. Example: NMA, NMSc, NMCom, NSP. SP is a post, so it is using an N. Last, we come to 7th point. A is used before Mr., Mrs., Miss plus surname if a speaker is not well acquainted with the speaker. Suppose two persons are talking and there is a third person who doesn't know a one person from the group. वहां पे 3 जने हैं, उनमें से एक बंदा है जो दूसरे बंदे को नहीं जानता, एंड देयर इज अ पर्सन जो दोनों को जानता. तो जब हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो वो उन्हें नहीं जानता, तो वो एन का यूज करते हैं, सॉरी ए का यूज करते हैं. अगर वो उनसे से वेल नोन है कि हाँ आई ही ऑलरेडी नो हिम, तो वो डायरेक्टली बोलेंगे मिस्टर शर्मा. लेकिन अगर ही डजंट अवेयर ऑफ हिम, ही डजंट नो हिम, तो वो एन का यूज करेंगे. एंड मिस्टर शर्मा, ए मिस माथुर, मिस गुप्ता, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ द.
Definite articles. Let's see. The is called definite article and it can be used before singular as well as a plural noun in the following. ये एक आर्टिकल है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है. लेट्स सी. फर्स्ट, बिफोर नाउन इंट्रोड्यूस अर्लियर. हम नाउन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है लेकिन हम दोबारा उस नाउन का यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो हम उस नाउन के आगे द लगाएंगे. इफ वी आर रिपीटिंग अ नाउन इन सेम सेंटेंस तो हम उसे द के साथ यूज करेंगे सेकेंड टाइम में. आई सॉ अ लॉयन. यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया लेकिन इसी के साथ में द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. मैंने एक लॉयन देखा, वो लॉयन ट्री के नीचे सो रहा था. तो हम दोबारा लॉयन का यूज कर रहे हैं इन द सेम सेंटेंस, तो उसके पहले हम द लगाएंगे. ओके. सेकंड, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ सब्जेक्ट एडजेक्टिव्स. सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी ये यूज होता है. रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल. रवि क्या है? सबसे बेस्ट, यानी कि ये सिंगर है और उसके बारे में और डीपली इंफॉर्मेशन दी है कि ये बेस्ट सिंगर है, पूरे स्कूल में सबसे अच्छा है. तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया. इसके पहले हम द यूज कर रहे हैं. रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल. थर्ड, बिफोर नाउन डिफाइंड बाय फ्रेज. बिफोर नाउन डिफाइंड बाय अ फ्रेज और अ क्लॉज. फ्रेजेस और क्लॉज के पहले भी यूज होता है. द गर्ल इज द इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर. एक गर्ल है, द गर्ल, ठीक है, इन द ब्लू स्कर्ट, वो बता रहा है कि वो ब्लू स्कर्ट जिन्होंने पहनी है. तो इट इज टेलिंग अस अ फ्रेज और क्लॉज के बारे में हमें बता रहा है. जिन्होंने, यानी कि वो इंडिकेट कर रहे हैं जिन्होंने ब्लू स्कर्ट पहनी वो मेरी सिस्टर है. तो हमने गर्ल के आगे भी द यूज किया और ब्लू स्कर्ट के आगे भी द यूज किया. Let come to next. Before singular noun which signify the whole class or race. ऐसी चीज सिंगुलर नाउन जो कि हमें होल क्लास और रेस के बारे में बता रही है, यानी कि कोई कम्युनिटी है उनके उनके सबके बारे में बता रही है. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. अभी एनिमल क्या हो गया, यानी कि पूरी उनकी क्लास हो गई. होल क्लास यानी कि होल कम्युनिटी. एनिमल्स, एनिमल्स में डॉग आता है, तो डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, वो एनिमल है. तो एनिमल का यूज हो गया अभी डॉग, तो डॉग के आगे द लगेगा. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. एंड लास्ट पॉइंट है फिफ्थ. Sorry, there are so many points more. We will continue it in the next video. I'll show you a short video that will help you in
Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First, go to wix.com. I hope you attended all this session and loved it. If you have any query, would love to answer it. So let's end our session here. And if you have any query, do drop me message. Maintain your notes properly in your fair copy and drop me a picture on WhatsApp. Thank you.